name of the chapter is what? Force and friction. So what is force? From the definition point of view, it is push or pull. ठेला ताना। इस चीज को बेटा ऐसे पुश करेगा या पुल करेगा, उसमें क्या लगता है हमारा? फोर्स। That thing is force. So there are few effects of force. The next topic is what? Effects of force. Okay. So already in the last class we have discussed about the force and the effect of the forces. Now Baba, you tell me what is force? This is Prayag. You tell me what is force? Force is the push or pull direction of object. You tell me about few effects of force. Random when there is X, Y, Z. You can tell from the audience also, Manas. Can you tell few effects of force? Sir, a force can stop a moving object or can change the speed of a moving object. It can also change the direction of moving object or the shape or size of a moving object. Yes. Or any object. Yes, very good. So, very important effect is what? So, the first one is what? Force can move a stationary object. So, do you know what's the meaning of stationary? Sir, object that is not moving. Not moving. Stationary position. So the thing is what? Force can move a stationary object. जो चीज बेटा वो मतलब क्या मूविंग नहीं होता है, ऐसे स्टेशनरी रहेगा ना, you can apply force and that object will move. So हमने एग्जांपल लिया था फुटबॉल का, सबका फुटबॉल है ना, फुटबॉल बैठा हुआ है, तो जमीन पे रखा हुआ है, that is stationary position. So पीयूष ने क्या किया बेटा, एक किक मारा फुटबॉल को, तो फुटबॉल थोड़ा मतलब क्या हुआ, मूव करने लगा. तो that means force can move a stationary object. And one converse reason is what? Force can stop a force can stop a moving object. So both are actually in mathematics you can say both are reciprocal. Converse of another, one is converse of another. When a body in a rest position, stationary position, you can apply force and the object becomes moving. Conversely, when you apply force on a moving object, same football, that football you are kicking, that football comes like a projectile motion and can bear suppose. Arif ऐसे पैर को दे दिया बेटा और बॉल को क्या स्टॉप कर दिया. That means Arif apply force. So very important. First is what? Force can move a stationary object. Second one is what? Force can stop a moving object. The third one is what? Force can change the direction or speed of the moving object. Yes, force can sense The direction or speed. Speed का भी दे दिया ऊपर में. Sense the direction you can say. Speed भी होता है बेटा direction. अभी direction का कल तो बोला था ना, वो रियान पराग बैटिंग कर रहा है, सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा है ना. तो बुमराह ने बोल दिया, तो बुमराह ने बोल दिया उस तरफ से, सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा है, तो सूर्यवंशी 5 बॉल से लगा दे छक्का. That means force can applying force and he sense the direction of the ball. Ball coming from opposite side, and the bat he just give a shot and ball goes to the another direction. That means that force can sense the direction. There. Number 4 is what? Force can change the shape and size of the object. Yes. Another important thing is force can sense. Yes, force can. So एक लड़की है हमारे क्लास में, वो बोलेगा, लड़के लोग ये आंसर दे रहे हैं. Force can sense the shape and size of an object. बेटा बोल पाएगा बोलो बेटा. फोर्स ये तो एग्जांपल दे सकता है, मतलब फोर्स एक ऑब्जेक्ट का शेप और साइज सेंस करता है. ये बेटा इलेक्ट्रिक वाला एग्जांपल दे सकते हो, बैलून वाला बोलो. The length of a
rubber band increase when it pull? Yes. Suppose there is a rubber band of this size. You just take both the end and pull. Okay, that means the size of the rubber band will increase. पानी हो जाए तब ये खींचेगा ना बेटा तुम लोग उसको फोर्स अप्लाई किया है तो ये थोड़ा बड़ा हो गया ऐसा समझ में. So that means the first topic is what? The name of the chapter is what? Force and friction. But first topic is what? Force. So what is force? Definition is what? Push or pull. Definition is what? Push or pull. Push or pull of an object. उसको बोलते हैं force. अभी force का क्या हुआ? Force का हमने डिस्कस किया. Force the basic thing is what is unit. Force का unit होता है बेटा ऐसा unit होता है क्या? Newton. Newton. Simply N. अभी न्यूटन कहाँ से आया? बोलो न्यूटन के न्यूटन कहाँ से आया बेटा? Sir, from the great scientist and mathematician Sir Isaac Newton. Yes, आइजैक न्यूटन ने का फोर्स के ऊपर रिसर्च किया था बेटा. तो उसको रेस्पेक्ट देके उसका जो यूनिट है ना वो न्यूटन क्या लिखा है. ऐसा बोलो फोर्स पुश और पुल साइड से क्या है बोलो उसको दूसरी लो या आइडिया करना है. तो पहला टॉपिक क्या था बेटा? साइड फोर्स. ये फोर्स क्या चीज है? पुश करना पुल करना जो हम लोग अप्लाई करते हैं ना उसको ही फोर्स बोलता है. सिंपली ये समझ ऐसे 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 उधर गया ये उधर गया फोर्स है ना. तो फोर्स का क्या होता है? जो ऐसा है जो उसको न्यूटन बोलता है और एन से डिनोट करता है. उसके बाद क्या फोर्स का कुछ इफेक्ट आ गया. The force का generally in class 8 syllabus there are 4 or 5 effects you can write. The first one is what? Force can move a stationary body. Second one, force can stop a moving body. Third is what? Force can increase or decrease the speed of a moving body. Force can change the direction of a body, direction of an object. Force can change the shape and size of the object. So these are the simple force. So already we have discussed magnitude. We have discussed about the definition of force, unit of force, and effect of force. So these are the magnitude of force. For you can understand the word magnitude. It's a mathematical word, magnitude. What is the meaning of magnitude? Sir, numerical value. Numerical magnitude means numerical value. Force का भी बेटा numerical value ढूंढना पड़ेगा, है ना. तो एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं बेटा. एक तो फ्यूज, अगर बहुत फ्यूज है हमारे पास और एक पॉलीमर का आई है. तो क्या किया ना बेटा? एक ऐसा बीच में एक समस्या ऐसा गोदरेज का एक चीज ले लिया. ये क्या है? गोदरेज नहीं है, ये क्या है बेटा? Almira. अलमीरा ऐसा ले लिया. तो एक साइड में क्या क्या बेटा? ये फ्यूज ऐसे खींच रहा है और एक साइड में क्या कर रहा है? आरिफ खींच रहा है. दोनों बेटा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज यू नो दैट पुल और पुश इज फोर्स. दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो क्या हमारे इस एग्जांपल में ये क्या होगा? फ्यूज ये अलमीरा ये जो रैक है ना सेल्फ ना फ्यूज उसके तरफ ये खींच लेगा. हाँ, इस एग्जांपल में हम लोगों ने ले लिया था फ्यूज का मतलब फोर्स फ्यूज ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर एग्जांपल दिस वन. हाँ, तो ये आरिफ भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. सपोज क्या है? आरिफ ये ना बेटा ये ऐसे सेल्फ ये रैक्स ये चीज है. इसको बेटा इधर से आरिफ खींच रहा है, इधर से फ्यूज खींच रहा है. तो क्या हुआ? थोड़ा देर बाद ये इधर मूव कर रहा है. इधर ये फ्यूज आरिफ खींच रहा है क्योंकि सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. आरिफ अप्लाइज 25 न्यूटन and fuse applied 35 Newton and both are in opposite direction. Both are in opposite direction because fuse अपने तरफ खींच रहा है, आरिफ अपने तरफ खींच रहा है. दोनों एंड में तो ऑब्वियसली दोनों क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. तब उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा? 35 न्यूटन माइनस 25 न्यूटन आंसर होगा 10 न्यूटन. और 10 न्यूटन कहाँ होगा? फ्यूज के तरफ होगा, इसलिए 10 न्यूटन फोर्स इधर होगा. ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड रिजल्टिंग फोर्स. अब यही एग्जांपल अलग तरीके से कर सकता है. अलमीरा सब इधर पे है. अरे फ्यूज लगा रहा है 35 न्यूटन इधर, आरिफ भी इधर आ गया वो भी अप्लाई कर रहा है 25 न्यूटन. दोनों आके उसको ऐसे पुश कर रहे हैं. तो ये इजीली चला के चल जाएगा इधर
अकेला अकेला पीयूष इसको अगर पुश करेगा और ये अकेला आरिफ पुश करेगा, उससे दोनों अगर साथ में, if the both the forces together push them, then it easily goes to the opposite direction. That means in this phenomenon, actually what the total resulting force becomes 35 Newton plus 25 Newton, 60 Newton. Sir, therefore we can There is a conclude. question. Yes, sir. Before that, you just said this one. You come here. You said the motor particle position as a force is not the resulting value. It's a numerical value, but numerical value is the resulting value. Simple. Suppose both the students or both of you and Arif applying the force from same side. Then resulting force will be what? Sum of that two force. दोनों अगर इनको ऐसे पुश करे हो 35 न्यूटन 25 न्यूटन, टोटल फोर्स बन जाएगा 60 न्यूटन. एंड सपोज ऑपोजिट साइड से एक बेटा ऑपोजिट साइड से खींच रहे हो, एक अनदर साइड से खींच रहे हो, दैट मींस जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड अलग उसी मतलब साइड में वो मूव करेगा. दैट इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड होता है ये अपना फोर्स. अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो एनीवन नाउ इस बार इसी तरह का हो रहा है. तुम बेटा बोलो टाइप्स ऑफ फोर्सेस. यू कैन से अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ए बॉर्डर फोकस कर दे. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. So there are various types of forces. So but the main thing is what? Generally forces are divided into two parts. One is contact forces. Contact forces. Contact force and one is non-contact. One is non-contact force. So from the word you can understand what is contact और what is non-contact. Contact में बेटा दो सिस्टम कनेक्शन contact होना पड़ता है. उसमें जो फोर्स होगा वो contact forces और यहाँ पे non-contact forces. Contact forces में कुछ एग्जांपल दे सकता है anyone? Sir, friction. Friction. Yes, the very important one, that is frictional force or frictional force. It's a very important. And the second part of the chapter is what? Frictional forces or Sir, muscular and applied force. muscular forces. Yes, sir. Muscular forces, one of the example. Muscular forces, another example. मसल यूज करके जो फोर्स देगा वो मस्कुलर होगा. नॉन कांटेक्ट क्या दे सकता है एग्जांपल? Sir, gravity. मैग्नेट का जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स. सिंपल मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो भी सिंपली यू कैन से द मैग्नेटिक फोर्स द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज द दिस थिंग. सो मैग्नेटिक फोर्स. अगर देख बेटा ध्यान से देख, मैग्नेटिक फोर्स ये फोर्स सब बच्चे का मतलब in the early years actually you can apply this thing. ये तो हमारा मैग्नेट हमारा सुबह के प्लेट क्या है बेटा, मैग्नेट से वो यानी आयरन का जैसे पिन से वो करता है. और ये मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. और क्या है बेटा? Gravity. हाँ, another very important is what? Gravitational force. Gravitational force. Gravitational force is a very important force and Bornov actually study. ये Bornov मतलब इसमें study कर रहा है. ये कुछ फंडा निकल रहा है आइंस्टाइन के ऊपर. कुछ तो करेगा ये, है ना Bornov? Yes, sir. So types of forces. इसी का you understand this thing? There are few types of forces. The main thing is a contact force and non-contact force. Contact force again you can say muscular, frictional, non-contact, magnetic, gravitational, etc. और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है यहाँ पे. इलेक्ट्रोस्टैटिक non-contact force. Yes, sir. Non-contact force. Non-contact. Non-contact force और contact force भी you can write this electrostatic. Electrostatic. और क्या है बेटा मानस में वो contact क्या बोल सकता है कुछ? तो ये तो बेटा हो गया non-contact force हो गया, contact force हो गया. अभी we will discuss about this one. Friction. The main thing is not friction.
बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट है फिजिक्स का फ्रिक्शन, बिकॉज़ फ्रिक्शन तुमको आगे जाके लगेगा 11 में तो फ्रिक्शन का बहुत कुछ है। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? माइनस बोलेगा फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? Sir, when an object is moving on a surface, the surface gives an opposite force that is known as friction. Yes, very good, very good. That means when two surfaces rub each other, na? Rub you can say or slide you can say touch. तब क्या होता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। और the main thing is what? Frictional force is always opposite. It is what? Opposite to the direction of applied force, right? Applied force. You know that without frictional force it cannot move, it cannot write. So बेटा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम मतलब क्या है, वॉकिंग नहीं कर सकता, राइटिंग नहीं कर सकता, मतलब तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो एनीवन कोई फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर कुछ बोलेगा मेरे सिवा अलावा, ये वर्णन करना बोलेगा, कुछ बोलो। Sir, I will say why does friction occurs. So we know that every surface has some irregularities and no surface is completely smooth. So when two surfaces are rubbed against each other, the irregularities they interlock and a force is produced which is namely known as friction or frictional force. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला, इरेगुलरिटीज। तो क्या होगा ना बेटा, ये जो एक सरफेस के ऊपर तो एक सरफेस से रब करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, दोनों सरफेस मतलब कोई भी सरफेस कभी भी वो इतना वो नहीं होता है कि हम लोग खाली आंख से बस स्मूथ देख सकता है, लेकिन उसका इरेगुलरिटी होगा ही होगा। ये दोनों को रब करेगा ना, तो ये ड्यू टू दैट इरेगुलरिटीज दैट वन फोर्स प्रोड्यूस्ड एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस इट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन and it always act from the opposite direction. That is why ये जो बोलता है ना, ये एक बॉल से तूने ऐसे मूव करा दिया तो थोड़ी देर बाद जाके बॉल रुकता है नहीं रुकता है, रुकता है नहीं रुकता है, हाँ तो जो रुकता है ना बॉल, ये ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स रुकता है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ यू कैन अप्लाई हियर। व्हेन क्या था बेटा, बॉल न्यूटन का फर्स्ट ये बोलेगा प्राइम करेगा, किसको तो पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, किसको पता है? भरत तो पता है, भरत तो अपना हाथ कर रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है? आप बोलो, बोला नहीं बोलो। An object will not move until and unless an external force is applied on it, and it will not and a moving object will not stop until and unless an external force is applied on it. मूव करता हो ठीक है ना, उससे अगर बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई करेगा ना वो मूव ही करता रहेगा। और एक है जो बेटा स्टेशनरी बैठा हुआ है ना, अगर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेगा वो बैठा ही रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इतना नहीं सही है फ्रिक्शन में थोड़ा सा क्या करते हैं, जब फ्रिक्शन क्यों होता है, दो सरफेस एक के ऊपर एक टच रब करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स का चीज क्या है, वो ऑपोजिट जो मतलब ये बॉल में ऐसे थ्रो किया ना, ऐसे जा रहा है उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। That is why after few ball will stop. ये फ्रिक्शनल फोर्स का बहुत चीज है बेटा, ये तू देख सकता है जब मतलब कैरम करता है ना, कैरम में क्या करता है हम लोग, ये पाउडर बोरिक पाउडर वगैरह यूज करता है, तो बोरिक पाउडर वगैरह यूज करने से क्या होता है, कैरम स्ट्राइक इजीली मूव करता है। तो उसमें तुमने क्या करता है, फ्रिक्शन कमा दिया। पहले वो जो सरफेस था ना वो इतना स्मूथ नहीं था, कैरम का जो सरफेस होता है इतना स्मूथ नहीं था, तो जब तुमने स्ट्राइक ऐसे मूव करेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जब बोरिक पाउडर देगा हम मोजा यूज करता था तो करेगा तो क्या स्मूथ हो जाता है। तो वो क्या करेगा, तो बोले फ्रिक्शन के वन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का क्या होगा बेटा, इसको रिड्यूस कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। कोई चीज में क्या है, इंक्रीज करना पड़ता है वो अच्छा चीज है, कोई चीज में क्या है, रिड्यूस करना पड़ता है वो अच्छा चीज है ना। तो अभी एक चीज ध्यान से देख ले बेटा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर वो नहीं होगा
तो क्या क्या दिक्कतें होगा हम लोग को? So we cannot write, We cannot write. we cannot walk. We cannot walk. अभी cannot walk दिमाग लगाओ क्या cannot write क्या बोल रहे हैं? जी, फिर क्या सर क्या बोल रहे हैं? सुनील क्या बोल रहे हैं? अभी तो हमको walk करता है ना, हमारा पेट का जो मिसिंग, इसलिए तुम लोग को ये पता है ना बेटा, जो हम लोग शूट टाइस के हम लोग स्लिप होता है, और जो ये जो एकदम जो फ्लैट सोल ना शू का जो फ्लैट शू हो ना से सोल होता है ना, उसमें क्या होता है ज़्यादा स्लिप होता है। अभी ज़्यादा स्लिप फ्लैट है ना, वो स्मूथ सरफेस है। हाँ, स्मूथ सरफेस तो क्या होगा, टाइस का अगर पानी गिरा हुआ होगा, हाँ मीठा तेल पर जो रखा है ना ऐसे ऐसे पानी गिराएगा तो उसके ऊपर अगर तेल देगा ना बेटा, वो स्लिप हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, लेस फ्रिक्शनल फोर्स। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब ये एक और चीज यार, प्रेशर को नेक्स्ट चक्कर में है, प्रेशर फोर्स में ये खुद का जो पेड़ था वो अलग चीज से उल्ट बन गया है। तो कोई चीज में हम लोग को रिड्यूस करना पड़ता है फ्रिक्शन, ये रिड्यूस फ्रिक्शन नहीं करने से दिक्कत हो जाती है। कोई एग्जांपल देगा कैसे क्यों फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ता है? एनीवन उसमें है तो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। Sir, suppose we use a cycle for a long time. So if we don't reduce the friction, the chains of the cycle they will get damaged. So that's why reducing friction is necessary in cycles. कहाँ पे साइकिल फ्रिक्शन कहाँ रिड्यूस करेंगे? मतलब वो चेन्स में तेल देते हैं ना। हाँ, बॉल बियरिंग होता है मशीन में है ना, वो तो आपने टेल गेजेस जो बोले तो जिमो मशीन मिला दो, जिम मिला मशीन का एनी पुली कैन से एनी पुली का पुली होता है, उसमें टेल देता है नहीं देता है, हाँ जाम होता है ना, जब जाम होता है फ्रैक्चर का सरफेसेस ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछा था उसने, how weight oblique mass is related to friction? How weight oblique mass related to friction? Right. If the mass is more, then the friction is more. That means weight or mass is directly proportional to friction. It's a mathematical word, directly proportional. That means weight oblique mass increase, friction also increase. Weight oblique mass decrease, friction also decrease. Can you give an example, Gaurav? Already I discussed about that. Sir, suppose there are two boxes, one is 10 kg and one is 20 kg. Yeah, suppose we are considering two boxes. Weight of this box is 10 kg and weight of this box is 20 kg. Yes. So to push the first box, we will require less force because of less friction applied on it. But in the second box, it has more weight, therefore more friction is applied on it, therefore we will require more force. Yes. That means actually what? To move this box compared to this, less force needed. 10 kg का एक है उसको तो पुश करेगा, जितना तुम्हारा फोर्स लगेगा 20 kg में ज़्यादा लगेगा। इसी कॉमन सेंस। अभी ज़्यादा क्यों लगा? उसको फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। ऐसा बोलते हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ है तो बोलना you can say anything you want to say. Advantage of, you can show your face also. You are giving answer and answer not showing the face. Hi. So advantages and disadvantages of forces. There are few topics are given here. Advantages and disadvantages. Topic you have to, if you teach, you have to remember this one. Friction is useful force. It presents on बोलने का है जो वॉकिंग करने में, राइटिंग करने में इजी है। डिसएडवांटेज है नेसेसरी चीज में डिसएडवांटेज होता है। फ्रिक्शन opposes the relative motion between any two bodies in contact. This result in the loss of a large amount of. The very important thing is we don't need to write the whole paragraph in your exam. The main thing is that loss of energy. Loss of energy is the main disadvantage of friction. And one is what? This one. Friction causes wear and tear of the parts. मतलब क्या है उसको
बिगड़ जाता है बेटा, खराब हो जाता है। और मान लो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूसेस हीट, हाँ वो तेरे से बेसिकली अभी हीट ये अनदर पार्ट ऑफ द फिजिक्स। यस हार्मोनिक्स एनर्जी दो चीज जब आप करेगा ना हीट में मिलेगा, ये है ये हीट प्रोड्यूस हुआ, इट्स अ कॉमन थिंग। ठंडा दिन में की को ये लगा देता है, ये लगा देता है ना हीट, ये क्या हुआ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, विंडोज दिखा सकता है तुमको ऐसे। यही सोचो इन एवरी टाइम व्हेन टू सरफेस कांटेक्ट इट विल प्रोड्यूस, तो क्या होता है कोई चीज में क्या होता है मोर हीट प्रोड्यूस मेशिनरी से खराब हो जाता है। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में हम लोग पता ना रिड्यूसिंग फ्रिक्शन रिड्यूस करना तो पता कैरम बोर्ड का बोला वो तो रिड्यूस करता है, तेल वगैरह यूज करता है हम लोग मेशिनरी सिस्टम है ना, सरफेस को स्मूथ बनाता है, सिंपल नहीं। और इंक्रीजिंग फ्रिक्शन में सरफेस को क्या बोलेगा ज़्यादा स्मूथ नहीं, स्मूथ कमाना होता है घटाना होता है। ये फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन कैसे सबको पता है, ये दो चीज ऑपोजिट टू ईच अदर है। बच्चे लोग उल्टा कर देता है, क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो उल्टा मत करो। फ्रिक्शन बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा तो तुम लोग को चलने में दिक्कत होगा, फ्रिक्शन कमेगा नीचे आएगा ना तो तुम लोग को चलने में अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन पूरा कमा दो तुम लोग गिर पड़ोगे ना, चल ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, वो ऐसा होता है। तो बेटा समझ में आया ना फोर्स एंड फ्रिक्शन। यस सर। तुम बोलो फोर्स एंड फ्रिक्शन कुछ तो बोलो बेटा, क्या समझ में आया सिखा दो, बोलो क्या समझ में आया बोलो, कुछ भी बोलो बेटा, वीडियो चल रहा है, कुछ भी बोलो। ये शर्मा गया बेटा, तू बोलो। If the surface यू जैसे घूम के आओ, सबको लिखा वीडियो बोलो बेटा, सब बोलो। if the surface is irregular, then the friction is less, and if the surface is smooth, then friction is more. ओके मानस थोड़ा फोर्स के बारे में बोलो कुछ भी। Sir, when we push or pull an object is called force. So, इफेक्ट के बारे में बोलो। sir, if you apply force, a stationary object will move, and if you apply force to a moving object, it will stop. And we can change the shape and size also of an object by applying force, and a force can also change the direction or the speed of a moving object. Very good, very good. Arif, you can say anything about this one? Types of forces. कैसा कैसा फोर्स होता है बेटा? बुक मत देखो, डायरेक्ट उसको बोलो। Two types of forces here. Contact force. Contact force are that contact with each other is known as contact force, and non-contact force don't कांटेक्ट नहीं होता है। एग्जांपल ले दो, एक कांटेक्ट का एक एग्जांपल दो, नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल दो। contact force like किस जिसमें कांटेक्ट होता है, मस्कुलर फोर्स यू कैन से। ओके, तुम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का दो एग्जांपल दो, जो जिसमें मतलब कांटेक्ट नहीं होता है, सिंपल। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स, वेरी गुड। और एक बताओ। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, समझ में है ना यूज बेटा, समझ में है ना। हाँ, फोर्सेस बहुत इजी से बता रहे फोर्स। हाँ, तो बेटा महाराज बेटा फिनिश कर दे वीडियो को, एक बार सार को दिखा के फिनिश कर दे। ओके स्टूडेंट, सो फोर्स एंड फ्रिक्शन खत्म हुआ इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेगा, लेटरल एंड नॉन लेटरल क्वेश्चन विल डिस्कस। ओके, बाय बाय। This one is what? Types of friction. Types of friction. Types of friction. So, how many types of friction here? Four. First one is Static friction. so one is static friction. One is Sliding friction. sliding friction. उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन आएगा एंड फ्लो फ्रिक्शन आएगा ना। Yes, sir. नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन।
Moving friction. Spelling मत पढ़ना करोगे. Spelling पे मत जाओ, concept पे जाओ. And next one is fluid friction. So there are 4 types of friction. So frictional force already discussed in the last video. Okay. So frictional force already discussed in the last video. The first one is static friction, sliding friction, rolling friction, fluid friction. Static friction, about static friction, Borna will discuss. Borna tell me what is static friction. Sir, when two bodies come in contact, then static friction is applied. For example, when we walk, our feet come in contact with the ground, but for a less time. So it is considered as static friction. That means you can say another word, in contact all this friction, in this friction, the frictional force is what? Highest. And it's more. The next one is sliding friction. So already like sliding, एक चीज के ऊपर slide करेगा. तो Prayag, can you give one example of sliding friction? Suppose there is a box and the surface is sliding. The box will slide towards the direction downwards. Yes, this is sliding friction. Rolling friction सबको पता है, रोल करके जाएगा. वो जो सका लगा हुआ है ना, करता है ना वो. ये क्या बोलेगा उसको? बोल. तू ही बोल. Sir, suppose a football is there, then the football is rolling on the ground, then it is rolling friction. So football, you can say ball. There is a spell set. Ball का क्या होगा? ये हिस्सा, ये space मतलब लगा होगा. तो less friction होगा, definitely. अभी static friction में क्या होगा? जो contact होता है ना surface के साथ, वो ज़्यादा होता है. Sliding में थोड़ा कम, और sliding में gravitation भी थोड़ा over होता है. Sliding को interlock करने के लिए कम time रहता है. कम रहता है. रोलिंग का पता चलता है. Next वाला बहुत important fluid friction. ये दो चीज में अप्लाई, दो चीज में अप्लाई. किसमें अप्लाई है बोलो? Water and air. एयर वाटर है. सो ये तो तुम लोग को पता ही है बेटा. तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है. जो हम लोग का बार्ड होता है, बार्ड का जो ये विंग्स होता है वो अलग शेप का होता है, जहाँ पे लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. ये जो एरोप्लेन क्या है, ये या तो जो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, विंग्स. वो कैसा होता है? दिखाओ सिर्फ दिखा लो. तो इसमें क्या होगा? जरा तो ये जो बुलेट ट्रेन, इट्स वन एग्जांपल ऑफ दिस. बुलेट ट्रेन पता है सबको. बुलेट ट्रेन होता है तो पहले जमाने में ट्रेन होता था. वो ट्रेन में क्या होता था बेटा? जो उससे ये शेप ऐसा क्यूबॉइड शेप का जो वो शेप होता है. तो बुलेट ट्रेन क्या होता है बेटा? ये ऐसा कर दिया मूवमेंट. तुम लोग देखे ना बुलेट का? तो ये से ऐसा ये ऐसा करती है. हाँ, तो क्या होता है उसको, वो हवा का जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है. सिर्फ मैंने डेली लाइफ में यूज होता है ये चीज, पता नहीं होता है, लेकिन वो चीजें है ना. तो फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर तुम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन है 100% टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन. एक एग्जांपल सबका देख लेना और एग्जाम फाड़ देना. ओके, बाय बाय.